آپ کو صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی کہ کہیں آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ نہ جائے۔ آپ سے اچھی نا وہ نور ہے، آپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اصل خوشی تو اس بات میں ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو عزت دے، باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ کہا تھا میں نے تائی جان کہ چھان بین کروا لیں، وہ لوگ مجھے پہلے دن سے ٹھیک لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اماں میں نے تحسین کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس نے میرے خلاف تمہارے کان بھٹکائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہ ہو؟ کیا ملا اپنا رشتہ طے کر کے؟ صرف انسلٹ ہی ہوئی؟ کیا کچھ فیس کرنا پڑا ہمیں؟ تم نے کتنوں کے دل توڑے ہیں عارش، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے اعجاز اور عصمت پہ بالکل اعتبار نہیں، تم جا کے وصیت بدلوا لو۔ بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا، انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ ہاتھ سے قسمت میں لکھے ہوتے ہیں نا، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ان کو ٹال نہیں سکتے۔ تحسین کی خوشی اس میں نہیں تھی، وہ آپ کی خوشی کے لیے اس فیصلے پر رضامند ہوئی تھی۔ کون ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھنا چاہے گی؟ میں تو بس اس کی خوشی چاہتی تھی بیٹا۔ جب تک تم نور کو نہیں بلاؤ گے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تائی جان میرے ماما بابا کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، مجھ سے بھی یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ ماما کیا میری یہ غلطی اتنی بڑی ہے؟ کیا میں پوری زندگی اس کی سزا بھگتوں گی؟ شیشہ اگر ایک دفعہ گر کے ٹوٹ جائے نا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شیشے کی طرح نازک۔ پلیز آپ میرے لیے یہ سب کچھ بھول نہیں سکتے۔ بہت پڑھے لکھے بندے اولاد کو تربیت دینے میں نا مات کھا گئے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تحسین کا رشتہ تو اب ٹوٹ چکا ہے اور اس کو اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ دکھ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نور بھی علیان اور اس کی ماں کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اس کے بعد تحسین کا رشتہ وہاں پر کروائیں۔ لیکن علیان نے تو سستی کی ساری حدیں پار کر دی اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں بالکل بھی معلومات حاصل نہیں کی۔ اب بھی اگر علیان کے باپ کا دوست آ کر ان لوگوں کو ساری سچائی نہ بتاتا تو وہ لوگ تو تحسین کو ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیتے، اور علیان کو تو بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس لڑکے نے اپنی پہلی بیوی کا قتل بھی خود ہی کیا تھا، اور اگر علیان تحسین کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیتا تو وہ تو پہلے تحسین سے ساری جائیداد حاصل کرتا، اس کے بعد تحسین کو بھی قتل کر دیتا۔ یہاں پر تحسین کی زندگی تو بال بال بچ چکی ہے، لیکن ان لوگوں کی بےزتی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تحسین دلہن بنی بیٹھی تھی اور عین نکاح والے دن علیان کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اب تو تحسین بھی اپنی ماں سے ناراض ہو جائے گی کہ میں تو آپ سے پہلے ہی بول رہی تھی کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن آپ نے زبردستی میری یہ شادی طے کی اور اب دیکھیں میری کتنی زیادہ انسلٹ ہو گئی ہے۔ علیان بھی اب تحسین کی یہ حالت دیکھ نہیں پائے گا اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ تحسین کی شادی اب احتشام سے ہی کروائے گا، کیونکہ وہ تحسین کی زندگی کے ساتھ مزید تجربے نہیں کر سکتا۔ اب علیان اپنی ماں کو بھی صاف صاف بول دے گا کہ وہ تحسین کی شادی احتشام سے ہی کروائے گا، کیونکہ احتشام میرا دیکھا بھالا اور میرا دوست رہ چکا ہے اور احتشام کا کردار بھی بہت اچھا ہے اور وہ انسان بھی کافی اچھا ہے، اس لیے اب اس کو اور کوئی بھی تجربہ نہیں کرنا اور تحسین کی شادی وہیں پر کروانی ہے۔ علیان کی ماں بھی پہلے تو نہیں مانے گی، لیکن تحسین کی حالت دیکھنے کے بعد اب وہ بھی اس رشتے پر مان جائے گی۔ اب علیان احتشام سے بولے گا کہ وہ تحسین کا رشتہ لے کر آ جائے، اس طرح تحسین اور احتشام کی شادی کروا دی جائے گی۔ وہاں پر عارش کو جس لڑکے نے دھوکہ دیا تھا اور اس کا انسٹیٹیوٹ بیچ دیا تھا، وہ لڑکا عارش کو مل جائے گا۔ عارش فوراً پولیس کے حوالے اس لڑکے کو کروا دے گا، جس کے بعد عارش کو اس کا حصہ واپس مل جائے گا۔ اب عارش کے مالی حالات تو ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن عارش سے کوئی بھی خاندان میں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عارش کی ماں اس کو بار بار بول رہی ہے کہ وہ سب لوگوں سے معافی مانگے، لیکن عارش کی معافی مانگنے کے باوجود کوئی بھی ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عارش نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سارے خاندان سے راضی ہو جائے کہ وہ نویرہ سے شادی کر لے، کیونکہ اس طرح عارش اور نویرہ کے خاندان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو جو گلا تھا عارش اور نویرہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب عارش کے پاس جب اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اپنی ماں اور خاندان والوں کو راضی کرنے کا تو نویرہ سے شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس طرح جب ان دونوں کی شادی طے ہوگی تو آپس میں سارے خاندان والے دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے، علیان کی ماں کے تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو بھی جو نویرہ اور عارش دونوں سے ہی گلے رہتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح علیان اور نور کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گا اور عارش اور نویرہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہنے لگیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी आलियान और इसकी माँ को समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन आलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर आलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते। और आलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था, और अगर आलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन आलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। आलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब आलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। आलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब आलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और उसका इंस्टीट्यूट बेच दिया था वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और आलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का तो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। आलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और आलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह आलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी आलियान और इसकी माँ को समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन आलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर आलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते। और आलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था, और अगर आलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन आलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। आलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब आलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। आलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब आलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और उसका इंस्टीट्यूट बेच दिया था वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफी मांगे, लेकिन
لیکن عارش کی معافی مانگنے کے باوجود کوئی بھی ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عارش نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سارے خاندان سے راضی ہو جائے کہ وہ نویرہ سے شادی کر لے، کیونکہ اس طرح عارش اور نویرہ کے خاندان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو جو گلہ تھا عارش اور نویرہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب عارش کے پاس جب اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اپنی ماں اور خاندان والوں کو راضی کرنے کا تو نویرہ سے شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس طرح جب ان دونوں کی شادی طے ہوگی تو آپس میں سارے خاندان والے دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے۔ علیان کی ماں کے تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو بھی جو نویرہ اور عارش دونوں سے ہی گلے رہتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح علیان اور نور کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گا اور عارش اور نویرہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہنے لگیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تحسین کا رشتہ تو اب ٹوٹ چکا ہے اور اس کو اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ دکھ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نور بھی علیان اور اس کی ماں کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اس کے بعد تحسین کا رشتہ وہاں پر کروائیں۔ لیکن علیان نے تو سستی کی ساری حدیں پار کر دی اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں بالکل بھی معلومات حاصل نہیں کی۔ اب بھی اگر علیان کے باپ کا دوست آ کر ان لوگوں کو ساری سچائی نہ بتاتا تو وہ لوگ تو تحسین کو ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیتے، اور علیان کو تو بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس لڑکے نے اپنی پہلی بیوی کا قتل بھی خود ہی کیا تھا، اور اگر علیان تحسین کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیتا تو وہ تو پہلے تحسین سے ساری جائیداد حاصل کرتا، اس کے بعد تحسین کو بھی قتل کر دیتا۔ یہاں پر تحسین کی زندگی تو بال بچ چکی ہے، لیکن ان لوگوں کی بے عزتی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تحسین دلہن بنی بیٹھی تھی اور عین نکاح والے دن علیان کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اب تو تحسین بھی اپنی ماں سے ناراض ہو جائے گی کہ میں تو آپ سے پہلے ہی بول رہی تھی کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن آپ نے زبردستی میری یہ شادی طے کی اور اب دیکھیں میری کتنی زیادہ انسلٹ ہو گئی ہے۔ علیان بھی اب تحسین کی یہ حالت دیکھ نہیں پائے گا اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ تحسین کی شادی اب احتشام سے ہی کروائے گا، کیونکہ وہ تحسین کی زندگی کے ساتھ مزید تجربے نہیں کر سکتا۔ اب علیان اپنی ماں کو بھی صاف صاف بول دے گا کہ وہ تحسین کی شادی احتشام سے ہی کروائے گا، کیونکہ احتشام میرا دیکھا بھالا اور میرا دوست رہ چکا ہے اور احتشام کا کردار بھی بہت اچھا ہے اور وہ انسان بھی کافی اچھا ہے، اس لیے اب اس کو اور کوئی بھی تجربہ نہیں کرنا اور تحسین کی شادی وہیں پر کروانی ہے۔ علیان کی ماں بھی پہلے تو نہیں مانے گی، لیکن تحسین کی حالت دیکھنے کے بعد اب وہ بھی اس رشتے پر مان جائے گی۔ اب علیان احتشام سے بولے گا کہ وہ تحسین کا رشتہ لے کر آ جائے، اس طرح تحسین اور احتشام کی شادی کروا دی جائے گی۔ وہاں پر عارش کو جس لڑکے نے دھوکہ دیا تھا اور اس کا انسٹیٹیوٹ بھیج دیا تھا وہ لڑکا عارش کو مل جائے گا۔ عارش فوراً پولیس کے حوالے اس لڑکے کو کروا دے گا، جس کے بعد عارش کو اس کا حصہ واپس مل جائے گا۔ اب عارش کے مالی حالات تو ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن عارش سے کوئی بھی خاندان میں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عارش کی ماں اس کو بار بار بول رہی ہے کہ وہ سب لوگوں سے معافی مانگے، لیکن عارش کی معافی مانگنے کے باوجود کوئی بھی ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عارش نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سارے خاندان سے راضی ہو جائے کہ وہ نویرہ سے شادی کر لے، کیونکہ اس طرح عارش اور نویرہ کے خاندان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو جو گلہ تھا عارش اور نویرہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب عارش کے پاس جب اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اپنی ماں اور خاندان والوں کو راضی کرنے کا تو نویرہ سے شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس طرح جب ان دونوں کی شادی طے ہوگی تو آپس میں سارے خاندان والے دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے۔ علیان کی ماں کے تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو بھی جو نویرہ اور عارش دونوں سے ہی گلے رہتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح علیان اور نور کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گا اور عارش اور نویرہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہنے لگیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تحسین کا رشتہ تو اب ٹوٹ چکا ہے اور اس کو اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ دکھ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نور بھی علیان اور اس کی ماں کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اس کے بعد تحسین کا رشتہ وہاں پر کروائیں۔ لیکن علیان نے تو سستی کی ساری حدیں پار کر دی اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں بالکل بھی معلومات حاصل نہیں کی۔ اب بھی اگر علیان کے باپ کا دوست آ کر ان لوگوں کو ساری سچائی نہ بتاتا تو وہ لوگ تو تحسین کو ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیتے، اور علیان کو تو بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس لڑکے نے اپنی پہلی بیوی کا قتل بھی خود ہی کیا تھا، اور اگر علیان تحسین کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیتا تو وہ تو پہلے تحسین سے ساری جائیداد حاصل کرتا، اس کے بعد تحسین کو بھی قتل کر دیتا۔ یہاں پر تحسین کی زندگی تو بال بچ چکی ہے، لیکن ان لوگوں کی بے عزتی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تحسین دلہن بنی بیٹھی تھی اور عین نکاح والے دن علیان کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اب تو
तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब अलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। अलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब अलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए। इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और इसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था, वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है, इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का, तो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। अलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह अलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी अलियान और इसकी माँ को समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन अलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर अलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते। और अलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था और अगर अलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन अलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं है। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब अलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। अलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब अलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए। इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और इसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था, वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है, इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का, तो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। अलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह अलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि
कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी आलियान और इसकी माँ को समझा समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन आलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर आलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते। और आलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था और अगर आलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन आलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। आलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब आलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। आलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब आलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और इसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और आलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का तो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। आलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और आलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह आलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी आलियान और इसकी माँ को समझा समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन आलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर आलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते और आलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था और अगर आलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन आलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। आलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब आलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। आलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब आलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और इसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने
کے لیے تیار نہیں ہے۔ عارش کی ماں اس کو بار بار بول رہی ہے کہ وہ سب لوگوں سے معافی مانگے، لیکن عارش کی معافی مانگنے کے باوجود کوئی بھی ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عارش نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سارے خاندان سے راضی ہو جائے کہ وہ نویرہ سے شادی کر لے، کیونکہ اس طرح عارش اور نویرہ کے خاندان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو جو گلہ تھا عارش اور نویرہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب عارش کے پاس جب اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اپنی ماں اور خاندان والوں کو راضی کرنے کا تو وہ نویرہ سے شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس طرح جب ان دونوں کی شادی طے ہوگی تو آپس میں سارے خاندان والے دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے، علیان کی ماں کے تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو بھی جو نویرہ اور عارش دونوں سے ہی گلے رہتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح علیان اور نور کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گا اور عارش اور نویرہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہنے لگیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تحسین کا رشتہ تو اب ٹوٹ چکا ہے اور اس کو اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ دکھ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نور بھی علیان اور اس کی ماں کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اس کے بعد تحسین کا رشتہ وہاں پر کروائیں، لیکن علیان نے تو سستی کی ساری حدیں پار کر دی اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں بالکل بھی معلومات حاصل نہیں کی۔ اب بھی اگر علیان کے باپ کا دوست آ کر ان لوگوں کو ساری سچائی نہ بتاتا تو وہ لوگ تو تحسین کو ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیتے، اور علیان کو تو بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس لڑکے نے اپنی پہلی بیوی کا قتل بھی خود ہی کیا تھا، اور اگر علیان تحسین کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیتا تو وہ تو پہلے تحسین سے ساری جائیداد حاصل کرتا، اس کے بعد تحسین کو بھی قتل کر دیتا۔ یہاں پر تحسین کی زندگی تو بال بال بچ چکی ہے، لیکن ان لوگوں کی بےزتی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تحسین دلہن بنی بیٹھی تھی اور عین نکاح والے دن علیان کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اب تو تحسین بھی اپنی ماں سے ناراض ہو جائے گی کہ میں تو آپ سے پہلے ہی بول رہی تھی کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن آپ نے زبردستی میری یہ شادی طے کی اور اب دیکھیں میری کتنی زیادہ انسلٹ ہو گئی ہے۔ علیان بھی اب تحسین کی یہ حالت دیکھ نہیں پائے گا اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ تحسین کی شادی اب احتشام سے ہی کروائے گا، کیونکہ وہ تحسین کی زندگی کے ساتھ مزید تجربے نہیں کر سکتا۔ اب علیان اپنی ماں کو بھی صاف صاف بول دے گا کہ وہ تحسین کی شادی احتشام سے ہی کروائے گا، کیونکہ احتشام میرا دیکھا بھالا اور میرا دوست رہ چکا ہے اور احتشام کا کردار بھی بہت اچھا ہے اور وہ انسان بھی کافی اچھا ہے، اس لیے اب اس کو اور کوئی بھی تجربہ نہیں کرنا اور تحسین کی شادی وہیں پر کروانی ہے۔ علیان کی ماں بھی پہلے تو نہیں مانے گی، لیکن تحسین کی حالت دیکھنے کے بعد اب وہ بھی اس رشتے پر مان جائے گی۔ اب علیان احتشام سے بولے گا کہ وہ تحسین کا رشتہ لے کر آ جائے، اس طرح تحسین اور احتشام کی شادی کروا دی جائے گی۔ وہاں پر عارش کو جس لڑکے نے دھوکہ دیا تھا اور اس کا انسٹیٹیوٹ بیچ دیا تھا وہ لڑکا عارش کو مل جائے گا۔ عارش فوراً پولیس کے حوالے اس لڑکے کو کروا دے گا، جس کے بعد عارش کو اس کا حصہ واپس مل جائے گا۔ اب عارش کے مالی حالات تو ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن عارش سے کوئی بھی خاندان میں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عارش کی ماں اس کو بار بار بول رہی ہے کہ وہ سب لوگوں سے معافی مانگے، لیکن عارش کی معافی مانگنے کے باوجود کوئی بھی ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عارش نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سارے خاندان سے راضی ہو جائے کہ وہ نویرہ سے شادی کر لے، کیونکہ اس طرح عارش اور نویرہ کے خاندان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو جو گلہ تھا عارش اور نویرہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب عارش کے پاس جب اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اپنی ماں اور خاندان والوں کو راضی کرنے کا تو وہ نویرہ سے شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس طرح جب ان دونوں کی شادی طے ہوگی تو آپس میں سارے خاندان والے دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے، علیان کی ماں کے تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور علیان کو بھی جو نویرہ اور عارش دونوں سے ہی گلے رہتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح علیان اور نور کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گا اور عارش اور نویرہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہنے لگیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تحسین کا رشتہ تو اب ٹوٹ چکا ہے اور اس کو اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ دکھ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نور بھی علیان اور اس کی ماں کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اس کے بعد تحسین کا رشتہ وہاں پر کروائیں، لیکن علیان نے تو سستی کی ساری حدیں پار کر دی اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں بالکل بھی معلومات حاصل نہیں کی۔ اب بھی اگر علیان کے باپ کا دوست آ کر ان لوگوں کو ساری سچائی نہ بتاتا تو وہ لوگ تو تحسین کو ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیتے، اور علیان کو تو بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس لڑکے نے اپنی پہلی بیوی کا قتل بھی خود ہی کیا تھا، اور اگر علیان تحسین کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیتا تو وہ تو پہلے تحسین سے ساری جائیداد حاصل کرتا، اس کے بعد تحسین کو بھی قتل کر دیتا۔ یہاں پر تحسین کی زندگی تو بال بال بچ چکی ہے، لیکن ان لوگوں کی بےزتی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تحسین دلہن بنی بیٹھی تھی اور عین نکاح والے دن علیان کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اب تو
तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब अलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। अलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब अलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और उसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था, वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है, इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का, तो वो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। अलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह अलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी अलियान और इसकी माँ को समझा समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन अलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर अलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते। और अलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था और अगर अलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन अलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब अलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। अलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब अलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और इसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था, वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है, इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का, तो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। अलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और अलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह अलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे
कि तहसीन का रिश्ता तो अब टूट चुका है और इसको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और नूर भी आलियान और इसकी माँ को समझा समझा कर थक चुके थे कि वो पहले इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद तहसीन का रिश्ता वहाँ पर करवाएं। लेकिन आलियान ने तो सुस्ती की सारी हदें पार कर दी और इसने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं की। अब भी अगर आलियान के बाप का दोस्त आकर इन लोगों को सारी सच्चाई न बताता तो वो लोग तो तहसीन को इन लोगों के साथ रुखसत कर देते। और आलियान को तो बाद में ये बात पता चली थी कि इस लड़के ने अपनी पहली बीवी का कत्ल भी खुद ही किया था, और अगर आलियान तहसीन को भी इसके साथ रुखसत कर देता तो वो तो पहले तहसीन से सारी जायदाद हासिल करता, इसके बाद तहसीन को भी कत्ल कर देता। यहाँ पर तहसीन की जिंदगी तो बाल बाल बच चुकी है, लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है। सारे खानदान वालों के सामने तहसीन दुल्हन बनी बैठी थी और एन निकाह वाले दिन आलियान को ये बात पता चली कि वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब तो तहसीन भी अपनी माँ से नाराज हो जाएगी कि मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी ये शादी तय की और अब देखें मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। आलियान भी अब तहसीन की ये हालत देख नहीं पाएगा और वो ये फैसला करेगा कि वो तहसीन की शादी अब एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि वो तहसीन की जिंदगी के साथ मजीद तजर्बे नहीं कर सकता। अब आलियान अपनी माँ को भी साफ साफ बोल देगा कि वो तहसीन की शादी एहतशाम से ही करवाएगा, क्योंकि एहतशाम मेरा देखा भाला और मेरा दोस्त रह चुका है और एहतशाम का किरदार भी बहुत अच्छा है और वो इंसान भी काफी अच्छा है, इसलिए अब इसको और कोई भी तजर्बा नहीं करना और तहसीन की शादी वहीं पर करवानी है। आलियान की माँ भी पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन तहसीन की हालत देखने के बाद अब वो भी इस रिश्ते पर मान जाएगी। अब आलियान एहतशाम से बोलेगा कि वो तहसीन का रिश्ता लेकर आ जाए, इस तरह तहसीन और एहतशाम की शादी करवा दी जाएगी। वहाँ पर आरिश को जिस लड़के ने धोखा दिया था और इसका इंस्टीट्यूट भेज दिया था, वो लड़का आरिश को मिल जाएगा। आरिश फौरन पुलिस के हवाले इस लड़के को करवा देगा, जिसके बाद आरिश को इसका हिस्सा वापस मिल जाएगा। अब आरिश के माली हालात तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आरिश से कोई भी खानदान में से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरिश की माँ इसको बार बार बोल रही है कि वो सब लोगों से माफ़ी मांगे, लेकिन आरिश की माफ़ी मांगने के बावजूद कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आरिश ने जो कुछ किया है, इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सारे खानदान से राजी हो जाए कि वो नवेरा से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह आरिश और नवेरा के खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और आलियान को जो गिला था आरिश और नवेरा से वो भी खत्म हो जाएगा। अब आरिश के पास जब और कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी माँ और खानदान वालों को राजी करने का, तो नवेरा से शादी के लिए भी राजी हो जाएगा। इस तरह जब इन दोनों की शादी तय होगी तो आपस में सारे खानदान वाले दोबारा से एक हो जाएंगे। आलियान की माँ के तमाम इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे और आलियान को भी जो नवेरा और आरिश दोनों से ही गिले रहते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह आलियान और नूर का रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाएगा और आरिश और नवेरा भी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगेंगे।